अस्सलाम वालेकुम डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो MTH 633 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन है और सेक्शन इंचार्ज है शहजाद फैजी। तो चलते हैं जी, हम सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो ऐसे तमाम व्यूवर्स, ऐसे तमाम दोस्त जो चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि असाइनमेंट का यूनिक सोल्यूशन जो है वो आप तक लाजमी पहुंच सके, और बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है वो पहुंच सके। तो हम आपकी असाइनमेंट मुकम्मल करते हैं, आप थोड़ी सी हमारी असाइनमेंट मुकम्मल कर दिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। लेट एनालाइज ग्रुप टू डिटरमाइन विच इट इज साइक्लिक and if so find its generators. G1 is equal to 6n whenever n belongs to Z under multiplication. This group consists of all powers of 6 where n is n integers. ये ज़्यादातर जो है वो थ्योरेटिकल है, तो इसको जो है ना वो आपको समझ के ही करना है। इसमें जो है वो मैथमेटिकल जो है वो ज़रा कम ही है। तो if n can be integers then the group is generated by 6 and G1 is a cyclic group generated by G6. Generated by G1, the set of integers for G1 is 6. So G2 is equal to A plus B 2 whenever A, B belong to Z under multiplication. So this group consists of all elements of the form A plus B is equal to 2 where A, B are integers. G2 is not cyclic. In this cyclic group, there should be element that repeatedly multiplied generates all other elements. क्योंकि इसमें जो है वो रिपीट हो रहा है तो इसलिए जो है ना G2 जो है वो cyclic group नहीं है। Generated for G2. Since G2 is not a cyclic, there are no generators in the sense of single element generating in the entire group. In summary, G1 is a cyclic and its generated are 6. G2 is not cyclic and it does not have a set of generators in the same way of cyclic group do. Question number 2. Let's analyze the each subset to determine whether it is subgroup of the complex numbers under addition. 7Z, the subset consists of all multiples of 7k whenever k belongs to Z. इसके बाद closure under multiplication 7k and 7m are in the best subset. Then 7k plus 7m is equal to 7 common ले लिया, k plus m is in the subset. Identity 0 is an identity element of each subset. Inverse element 7k is the subset. Then minus 7k is also in the subset. Therefore 7z is a subgroup of the complex number under addition. अब पाई जो है वो पाई n whenever n belong to Z, this subset consists of all powers of pi. Pi n belongs to Z. क्लोजर प्रॉपर्टी जो 5 प्रॉपर्टीज हैं उनका होल्ड होना जो है वो लाजमी है। जब आपने सेकंड ईयर पढ़ा था ना क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ जो है वो 2-3 प्रॉपर्टीज जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, अगर ये जो है वो होल्ड कर जाती है तो वो हमारे पास जो है वो सब ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो ये हमारे जो है ना वो तीनों प्रॉपर्टीज जो है ना वो इसकी होल्ड करती हैं। तो आगे जो है वो इन समरी 7z इज अ सब ग्रुप, पाई n belongs to Z is a subgroup. Question number 3. Solution to show that A dot B base 2 A2 B2 for all A B in subgroup G. Then A dot B is equal to B dot A. ये abelian property है हमारी। We will start by expanding A dot B2 using given condition. A dot B to A2 dot B2. नो एक्सपैंड लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड को साइड करेंगे तो वो ए बी डॉट ए बी, सिंस वी हैव ए बी ऑन बोथ साइड्स वी कैन कैंसिल द कॉमन टर्म्स। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए टू बी टू। नो लेट्स सिंप्लीफाई द इक्वेशन फर्दर। ए डॉट बी डॉट ए यानी बी और ए का जो है ना वो एक सेट बना लिया, ए डॉट ए B dot B, ये A2 B2 था तो इनवर्स से लिख लिया। Now since the element in a group have inverse, we can cancel on the left side and B on the right side. तो B dot A dot B, A dot B B. Now multiply both side B minus B inverse
b-1 और b-1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। तो b-1 b a डॉट b b-1 b-1 a डॉट b डॉट b-1 सिंप्लीफाई एंड फर्दर a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें दिया गया है, वो भी देखें। गिवन नंबर हमें दिया गया है, गिवन दैट a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू e फॉर a b c बिलोंग्स टू g we want to show that b dot c dot a is equal to e, यानी a dot b dot c जो है वो हमें e के इक्वल दिया गया है, b dot c dot a is equal to e दिया गया है। Starting with a dot b dot c is equal to e, let's multiply both side on the left side by b-1। b-1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, b-1 से जो है वो उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो अब हमारे पास जो है ना वो b-1 डॉट a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू हमारे पास b-1। अब ये हमारे पास जो है ना वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑन दी c-1। c-1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, इनको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद b डॉट e जो है वो e b के बराबर होता है, b-1 a डॉट b b-1 c-1। तो उसके बाद दोनों साइड से जो है वो b मल्टीप्लाई किया, इधर भी b मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी b मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है वो यहां जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद b-1 डॉट a डॉट e b-1 c-1 डॉट b, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इन सब को जो है वो सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो इसके जो आंसर है, क्योंकि हमने जो है वो सबको सिंप्लीफाई करते जाना है और करने के बाद जो है वो हमारे पास इसके आंसर्स आने हैं। तो ये जो है हमने पूरे डिटेल के साथ किया है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑन द ए, यानी जब आपके पास ये वाली सूरत हाल आ जाएगी तो आप c डॉट a इज इक्वल टू b डॉट c डॉट a, सिंस c डॉट a इज इक्वल टू e, e इज इक्वल टू b डॉट c डॉट a, सो वी हैव शोन दैट इफ a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू e है, तो देन b डॉट c डॉट e, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी सिचुएशन है। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अगर ये वाली चीज होगी हमारे पास a डॉट b डॉट c e के बराबर होगी, तो हमारे पास b डॉट c डॉट a जो है ये भी e के ही बराबर होगी। तो ये हमारी असाइनमेंट थी MTI 633 की, तो आप इसको जो है वो लाजमी समझ के कीजिएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। इस तरह के यूनिक सोल्यूशन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ जो बेल आइकन दिया गया है वो भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।